Okay, welcome dear students. Now you are watching lecture number 10 of 10 plus 1 class physics subject. So today we are starting third application of dimensional analysis, and that is about conversion of one system of units into another system of units. That is the value of some physical quantity will be given in one unit, and that is to be calculated in some another system of units. Okay, so let us understand the basic of this application. Okay, during the measurement of physical quantities, we have proved a formula, that is n1 u1 is equal to n2 u2, right? Where n1 was the numerical value and u1 is the unit of physical quantities. जब हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा था, उस टाइम हमने एक इक्वेशन प्रूव की थी, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. सो सिमिलरली हम यहाँ पर इसे यूज कर रहे हैं. सो लेट अस से दैट जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपको कन्वर्ट करना है किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन m पावर a, l पावर b और t पावर c है, राइट? जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपने चेंज करना है, जो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, या जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, उसका हमें डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए. लेट अस से द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी इज m power a, l power b, t power c. That is dimensions of m, l and t are a, b and c respectively, right? So and now let us consider m1, l1, t1. m1, l1 and t1 are the fundamental units of the physical quantity in system 1 in which its numerical value is n1, right? Then we can write x is equal to n1 u1 as x is equal to n1 m1 power a, l1 power b and t1 power c. That is, we have replaced the units with its fundamental quantities on which x is depending, and this is the formula for measurement of a physical quantities, that is x equal to n1 u1, right? So if in any system of unit where its fundamental quantities are measured in units of m1, l1 and t1, so your x become equal to n1, that is physical quantity x can be written as n1 is equal to m1 power a, l1 power b and t1 power c, where m1, l1, t1 are the fundamental units in system 1 and a, b, c are the dimensions of the physical quantity, right?
and now let you want to change it into some another system. So let us write, let M2, L2 and T2 are the fundamental units in system 2, in which its numerical value is to be calculated. Let it is N2, राइट। अब जिस सिस्टम में क्वांटिटी को चेंज करना है आपने, उस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट मान लीजिए M2, L2 और T2 हैं, ठीक है। तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी उसे हम लोगों ने N2 मान लिया। देन यू कैन राइट X एज N2U2 or this implies X as N2 M2 power A L2 power B T2 power C, right? Now see this formula carefully. The physical quantity is not changing, fundamental quantities powers are not changing, dimensions will remain same, dimensions कभी change नहीं होते हैं, किसी भी यूनिट में चले जाइए, बट द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑलवेज चेंजेस, ठीक है, उनकी यूनिट वैल्यू चेंज हो जाती है। सो M2 L2 T2 आर द फंडामेंटल यूनिट जो हमने सपोज किए वो आपके M2 L2 T2 हैं और इनकी पावर ABC आ गई, ठीक है। अब ये x और ये x दोनों सेम हैं तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस वे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। Therefore, N2 M2 power A L2 power B T2 power C is equal to N1 into M1 power A L1 power B T1 power C. From here you can calculate N and this comes out to be, you can do it yourself. I am writing directly. N2 is equal to N1 is equal to M1 upon M2 power A L1 upon L2 power B T1 upon T2 power C. So this is the required formula which we shall use here to convert a physical quantity from one system of unit to another system of a unit. So keep this formula in mind. How does this formula is derived? That is here, you can see it, right? So let us start to solve some questions. Let us take first of all easiest question. So here is a question, very simple question. Convert 10 Newton into dyne. 10 न्यूटन इंटू डाइन, 10 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, 10 न्यूटन का वैल्यू डाइन में कितना होगा। सो सॉल्यूशन, first of all you will identify the physical quantities and it is clear that Newton and dyne are the unit of force. So here physical quantity is a force. कौन सी quantity है यहाँ पर? Physical quantity. So you can write the given physical quantity is force. अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला एस MLT-2, ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अब आपने M पावर A L पावर B T पावर C से कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ M पावर A L पावर B T पावर C, ठीक है। क्या मिलेगा?
ए मिल गया 1, बी एल की पावर है वो भी 1, और सी टी की पावर है और टी की पावर -2। देखिए जब हमने डेरिवेशन की थी ना इसका एप्लीकेशन की, तो वहाँ पे हमने फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी थी जिसे हमने चेंज करना था, उसके फंडामेंटल यूनिट्स में हमने जो डायमेंशंस ली थी वो ए बी सी ली थी। तो यहाँ पर भी हम ए बी सी लेंगे और जो डायमेंशन फार्मूला है उसमें से उन ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब वापिस अपने क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहता है 10 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो 10 न्यूटन गिवन है, न्यूटन एसआई सिस्टम है, तो सिस्टम 1 आपका क्या हो गया एसआई। सो यू विल मेक अ टेबल, एक साइड लिखेंगे आप सिस्टम 1 और दूसरी साइड आप लिख लेंगे सिस्टम 2। सिस्टम 1 वो होगा बच्चों जो आपको गिवन होगा, गिवन कौन सा है न्यूटन, न्यूटन एसआई यूनिट होता है, तो सिस्टम 1 जो है आपका एसआई हो गया। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली यूनिट नहीं दिए गए हैं, फंडामेंटल यूनिट दिए नहीं गए हैं इसमें, तो आपने सिंपली इसको एसआई लिख देना है क्योंकि एसआई में यूनिट है कंप्लीट। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन में, तो सिस्टम 2 जो है वो आपका डाइन में दिया है, तो डाइन आपका फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है, तो इसे आपने सीजीएस लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सिस्टम 1 वी राइट द फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। हमने फंडामेंटल यूनिट लिए थे m1 l1 t1, तो लिख लीजिए यहाँ पर m1 l1 t1 और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n1 जो गिवन होती थी। तो इन सभी फंडामेंटल यूनिट्स की एम एल और टी की एसआई सिस्टम में यूनिट वैल्यू लेनी है, यूनिट वैल्यू मींस 1। तो m1 का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट होता है एसआई में मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इनकी यूनिट वैल्यू होगी 1 किलोग्राम, 1 मीटर एंड 1 सेकंड। और n1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है सिस्टम 1 में मेजरमेंट की, वो कितनी है आपकी यहाँ पर 10 न्यूटन, तो n1 का वैल्यू हो जाएगा 10। आई एम राइटिंग ओनली द n1 न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट द यूनिट, सो डोंट राइट हियर द n, राइट। अब सिस्टम 2 में लेनी है फंडामेंटल यूनिट्स की वैल्यू m2 l2 t2 एंड n2। ठीक है, अब इनके यूनिट देखिए, m2 cgs में m2 ग्राम, l2 cgs में सेंटीमीटर, t2 मीन्स टाइम सेकंड, m मास की यूनिट ग्राम, l लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर cgs में, और t2 cgs में सेकंड। इन सब की यूनिट वैल्यू दैट इज 1 1 1, ध्यान रखें कौन सी वैल्यू लेंगे, ml और t की यूनिट वैल्यूज लेंगे। ठीक है, और n2 हमें कैलकुलेट करना है। सो अब हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यूजिंग द फॉर्मूला। अभी n2 का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 बाई m2 पावर a, l1 बाई l2 पावर b, t1 by t2 power c. So substitute values of all these terms here now. n1 is your 10, right? m1 is 1 kilogram, m2 is 1 gram, power a is a 1, value of l1 1 meter, value of l2 1 centimeter, power b, value of b is 1, t1 1 second, t2 1 second, and power is c is -2, right? Now in the next step you will convert the larger unit into smaller one, that is easy to do. So 10 into 1 kilogram into gram, 1000 gram upon 1 gram, power 1 you will no need to write power 1. 1 meter into centimeter, 1 meter is equal to 100 centimeter upon 1 centimeter as it is, power 1, right? So here it is 1 second, 1 second, no need to
convert anything because both are in the same unit. So s and s get cancelled. You are left with 1 by 1 power minus 2, right? So what you get in the next step is equal to g and g got cancelled, centimeter and centimeter get cancelled. So you get 10 into 1000 power 1, simply 1000, into 100 पावर 1 सिंपली 100 इंटू 1 बाई 1 1 हो गया, 1 का पावर -2 0 3 4 कुछ भी हो 1 ही आता है, ठीक है। 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। सो 10 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1, सो यू गेट हियर n2 एज इज इक्वल टू कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6 जीरो जाएगी तो 10 पावर 6 हो गया। तो n2 का वैल्यू 10 पावर 6 हो गया। सो यू कैन राइट देयर फॉर 10 न्यूटन इज इक्वल टू, जो कन्वर्ट करना था आपने 10 न्यूटन, वो किसके इक्वल आ गया 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 6 डाइन, राइट। ये सिस्टम 1 में वैल्यू है और ये सिस्टम 2 में वैल्यू है। 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 6 डाइन। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। So this is the question, convert 9 erg into joule. So first of all we have to identify the quantity. So here the quantity, the unit are given erg and joule, and we know very well that erg and joule are the unit of a work. So physical quantity to be converted is a work. So you can start its solution. The given physical क्वांटिटी, जैसे पीछे वाले में किया वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे। नहीं समझ आया तो रिप्ले करके लिख सकते हैं, राइट। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ नहीं आया होगा कैसे लिखा क्या लिखा तो आप रिप्ले करके देख लीजिए। समझा मैं देता हूँ यहाँ पर। द गिवन फिजिकल क्वांटिटी वर्क इज वर्क, वाई बिकॉज अर्ग एंड जूल आर द यूनिट ऑफ अ वर्क। सो दिस क्वांटिटी इज टू बी कन्वर्टेड। सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml2 t minus 2, that is comparing it with m power a, l power b, t power c. You get a power of m as 1, b power of l that is 2, c power of t that is -2, right? Now after this we have to identify the two systems which are to be here as system 1, सिस्टम 2, ओके। सो वेरी सिंपल, सिस्टम 1 अर्ग, अर्ग की सिस्टम में यूनिट अर्ग जो है वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट में होता है, इसका यूनिट ये होता है सीजीएस में। तो सिस्टम 1 आपका सीजीएस हो जाएगा और सिस्टम 2 किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। तो जूल जो है वो एसआई यूनिट है तो सिस्टम 2 आपका एसआई हो जाएगा। सिस्टम 1 जो है बच्चों वो गिवन लेना है आपने, और सिस्टम 2 जो है वो आपने अननोन सिस्टम लेना है या न्यू सिस्टम लेना है, ठीक है, जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम इनकी यूनिट वैल्यूज लिख देते हैं। तो सीजीएस में पता है आपको क्या होती है यूनिट वैल्यू, आई एम राइटिंग, प्रीवियस क्वेश्चन से ले सकते हैं आप लोग सिमिलरली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर m1 l1 t1 इन सिस्टम 1 दैट इज सीजीएस 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, यूनिट वैल्यू लेनी है हम लोगों को इनकी, ठीक है। and m2 l2 t2 1 kilogram in SI system 1 meter and 1 second. So n1 in the given system means जो नॉन है हमें पता है जिसका, तो वो 9 है इसका वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोगों ने 9 लिख लिया। और n2 भी have to calculate, so I am putting here the question mark. So using the formula now, इसके बाद हम क्या करते हैं, using the फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ओके। सो कन्वर्जन के लिए जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2 पावर a, l1 बाई l2 पावर b, t1 बाई t2 पावर c, ठीक है। सो इसके बाद क्या किया था हम लोगों ने, m1 m2 l1 l2 t1 t2 की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हमने रख देनी है। सो आप भी रखिए, वीडियो पॉज करके रखिए, जब रख लेंगे तो वीडियो प्ले कीजिए। ओके, सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज, आप भी वीडियो पॉज करके रख लीजिए वैल्यू, फिर आगे कीजिए इसको। 9 इज इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम, पावर 1 L1 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, एंड T1 एंड T2 एज सिमिलरली यहाँ से लेके वैल्यू रख दी।
अब उसके बाद हम लार्जर यूनिट में जो है, बड़ा यूनिट जो होता है उसको स्मॉलर में चेंज करेंगे। सो 1 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। पावर 1, नो नीड टू राइट। 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, 1 मीटर इंटू सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। पावर 2 हो गई। एस से एस आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड, और 1 अपॉन 1 पावर -2 आ गया। ठीक है, सो इज इक्वल टू 9 ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर एंड सेकेंड हम कर चुके हैं। सो दिस इज 1 अपॉन 1000, 9 अपॉन 1 अपॉन 1000 इंटू 1 upon 100 है, but its power is 2, so it is to be written 2 times. Okay, so 1 upon 100 into 1 upon 100 into 1 upon 1 power -2, 1 हो गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, so you get it here, solve like this way. So this is equal to 9 into 1 upon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 power 7, or you can write it as a 9 into 10 power -7, 9 into 10 power -7, right? So 9 और कितना 7 के इक्वल हो जाएगा। Therefore जो आंसर है उसको कैसे लिखेंगे आप लास्ट में। Therefore जो कन्वर्ट करना था वो क्या था, 9 अर्ग। सो 9 अर्ग किस सिस्टम में कन्वर्ट करना था, एसआई में, जिसका यूनिट है जूल। तो कितने जूल आ गया, 9 इंटू 10 पावर -7 जूल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन ऑफ सम हायर ऑर्डर, सो लेट अस स्टार्ट इट। कन्वर्ट अ वर्क ऑफ 50 जूल into system of unit which has unit of mass as 10 gram, unit of length as 100 centimeter and unit of time as 30 second. मीन्स आपको 50 जूल वर्क जो है वो दिया गया है। यू आर गिवन अ 50 जूल ऑफ वर्क, राइट। सो जूल एसआई यूनिट है, तो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट जो है आपका वो एसआई हो गया, और ये वर्क है फिजिकल क्वांटिटी जो हमें चेक करनी है। सो यू कैन राइट हियर डायरेक्टली एज here. So dear student, there is a light problem, so just wait. So here you write, क्या लिखते हैं हम लोग, लिख लीजिए। सो आई होप समझ आ गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी टू बी कन्वर्टेड वर्क हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला इज ml2 t-2। सो कंपेयरिंग विद दिस यू गेट a1 b2 एंड c-2, जैसे हम पीछे करते आए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना सिस्टम 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम 1 है बच्चों, ध्यान से देखिए, सिस्टम 1 गिवन होता है, तो गिवन यहाँ पर 50 जूल है जिसे हमने कन्वर्ट करना है। तो जूल आपका एसआई यूनिट ऑफ वर्क होता है, तो गिवन सिस्टम जो है वो एसआई हो गया। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यूज हैं, m1 फंडामेंटल क्वांटिटीज 1 किलोग्राम, L2 fundamental quantity length that is 1 meter and time M1 L1 T1 and it is 1 second, right? M1 1 kilogram, L1 1 meter and T1 1 second. सॉरी बेटा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, एक्चुअली लाइट आ और जा रही है। सो ध्यान से समझिए, सिस्टम 1 में वैल्यूज होती हैं M1 L1 T1 और उनका यूनिट वैल्यू हो गया 1 किलोग्राम, 1 मीटर एंड 1 सेकेंड। और यहाँ पे N1 जिसे कन्वर्ट करना है उस न्यूमेरिकल वैल्यू 50 है। ठीक है, अब हम सिस्टम 2 की बात करते हैं। तो सिस्टम 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, सीजीएस हमें पता नहीं चल रहा है कि किस में है, लेकिन हमें बोला गया है कि जिस यूनिट में, जिस सिस्टम में चेंज करना है उसमें मास का यूनिट जो है वो 10 ग्राम है। मीन्स 10 ग्राम को यूनिट वैल्यू माना जाएगा, दैट विल बी मेजर्ड एज अ 10 ग्राम। यूनिट ऑफ लेंथ विल बी मेजर्ड एज अ 100 सेंटीमीटर। मतलब उस नए सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स की यूनिट वैल्यू मास की 10 ग्राम है, लेंथ की 100 सेंटीमीटर है और टाइम की 30 सेकेंड है।
तो जब आप यहाँ पर सिस्टम 2 के लिए M2 L2 और T2 डिफाइन करोगे तो वो दिए गए सिस्टम के अकॉर्डिंग करोगे, इसके बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यूनिट ऑफ मास एज 10 ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ एज 100 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम एज 30 सेकेंड। तो ये यूनिट यहाँ पर दिए गए हैं और N2 आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब आप इसको कर सकते हो। सो यूजिंग द फॉर्मूला, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू N1 दैट इज 50 अपॉन इंटू M1 बाई M2 होता है। M1 इज 1 किलोग्राम, M2 इज 10 ग्राम, पावर A दैट इज 1, L1 बाई L2 होता है 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, पावर B दैट इज 2, T1 बाई T2, T1 is 1 second, T2 is 30 second and power is C minus 2, C minus 2, ठीक है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लार्ज यूनिट्स को स्मॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए, मीन्स हमें ऊपर और नीचे यूनिट सेम बनाने हैं। सो दिस बिकम 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर हो गया, डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर, पावर 2 इंटू 1 सेकेंड, सेकेंड सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, 1/30 पावर -2 हो गया, ठीक है। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 100 से 100 भी कैंसिल, और ये 1/30 है। तो आपके पास क्या रह गया, देखो 50 इंटू 1000 पावर 1 दैट इज ओनली 1 टाइम्स 1000 इंटू 1, ये 1 बच गया, 1 की पावर 2 है तो 1 इंटू 1 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई बाई 1/30 पावर -2 है, पहले इसकी पावर आप प्लस कर लेंगे तो इसको आप 30 पावर 2 कर लेंगे। आ रही बात समझ में, 1/30 का रेसिप्रोकल कर लेंगे आप लोग, 30 हो गया और पावर फिर 2 हो गई, ठीक है। नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है। सो यू गेट हियर 50 इंटू 1 2 3, 1 इंटू 1 खत्म हो जाएगा, 30 को 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 30 इंटू 30 हो गया, और ये इज इक्वल टू हो गया 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा, और जीरो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। So you can write it as 45 into 10 power 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। ये न्यू सिस्टम में आ जाएगी आपकी ये वैल्यू। तो देयरफॉर कन्वर्ट करना था 50 जूल को, और नए सिस्टम में जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी 45 इंटू 10 पावर 6, ठीक है। अब यहाँ यूनिट क्या लिखेंगे, कुछ भी यूनिट नहीं लिखेंगे, आप लिख देंगे न्यू सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपने उसे बनाया, न्यू सिस्टम में उसकी वैल्यू हो जाएगी 45 इंटू 10 पावर 6। तो इस तरह से हम एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर एप्लीकेशन ऑफ dimensional analysis. There one more application is left which will be taken in the next lecture. So watch all these videos carefully so that you can make your this concept perfect. Okay, goodbye, take care.